या साहिल, आई नो। साहिल, मुझे पता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्लीज एवरीवन फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ। देखो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें जो तुम्हें शायद पता होंगी एटम्स के बारे में। आई एम रिवाइजिंग देम अगेन। अगर तुम्हें किसी एटम का सिंबल लिखना है, दैट इज मान लो सिंबल एक्स है, तो उसके सुपर स्क्रिप्ट में हम लिखते हैं ए एंड सब स्क्रिप्ट में लिखते हैं जेड, वेयर ए इज एटॉमिक मास नंबर एंड जेड इज एटॉमिक नंबर। तो पहले मैं बता दूं कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। एक्चुअली एटॉमिक मास नंबर is the total number of protons plus neutrons inside the nucleus. Atomic mass number is the number of protons plus neutrons present inside the nucleus, and protons plus neutrons collectively called as nucleons. Okay, कोई सिंबल अगर x है तो उसके सुपरस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं a and we write z on subscript. A is atomic mass number, z is atomic number. Let me explain what is atomic mass number. Atomic mass number is the total number of protons plus neutrons inside the nucleus. Protons plus neutrons collectively called as nucleons. Protons plus neutrons collectively called as nucleons. Now Z. Z is the total number of protons inside the nucleus. Z is total number of protons inside nucleus, and that may be also equal to total number of electron. लेकिन केस क्या होना चाहिए, वो एटम शुड बी न्यूट्रल। हमने एटम को डिस्टर्ब नहीं किया है अगर, तो उस केस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स बोथ आर सेम, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर सेम if atom is neutral. Z is the total number of protons inside the nucleus, which is also equal to number of neutrons in number of electrons in neutral atom. प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम. ओके, नाउ if you got a value and z value, you can calculate number of neutrons by a minus z. अगर तुम्हें a पता है, z पता है, then you can calculate number of neutrons by a minus z. z को a में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will get number of neutrons. Is this clear to everyone? A is the atomic mass number, which is equal to protons plus neutrons. Z is the number of protons inside the nucleus, which may be also equal to number of electrons in neutral atom. And you can calculate number of neutrons equal to A minus Z. याद रखना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं इन द केस ऑफ न्यूट्रल एटम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं क्लोरीन, एटॉमिक नंबर इज 17. अरहाम जरा पेज पे देखो क्या लिखा है मैंने ए को. अगर मैं बात करूं क्लोरीन की 17, क्लोरीन 17, तो इस केस में क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स हैं एज वेल एज 17 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन अगर मैं बात करूं Cl माइनस की, उस केस में प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. आर यू गेटिंग? क्योंकि ये Cl माइनस इज नॉट न्यूट्रल. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम ओनली. Cl में प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बट Cl माइनस में प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज लेट मी नो एनी डाउट रिलेटेड टू दिस पेज. Please let me your doubt related to this page. You can write down in chat box. Okay, very good. I hope this page is very much clear to everyone now. Anish, timing is 6:45.
Now you have to refer lecture recording. I will share the PDF with you once. Once I will share the PDF in groups. Yes, this is the first page. Pranav, Ayush, are you aware of the timings? It is 6:45. Now moving to next page. Moving to next page. That is, please stop using chat box now. Your timing is 6:45. Please join by that time only. Otherwise, you have to refer recordings. Next is trick to remember elements up to atomic number 30. Look here. Please stop using chat box now. It's a request. Otherwise, I will disable it. Look here. Now we are going to remember how to memorize first 30 elements. I will give you 3 sentences by which you can memorize the element up to 30. The first sentence is, maybe you are aware of this. Hi, hello, listen BBC News on Friday night. This is the first sentence. Hi, hello, listen. Hi, hello, listen BBC News on Friday night. You can see on page पे तुम देख सकते हो. Hi, that is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, and neon. This is for first sentence. Hi, hello, listen BBC News on Friday night. This is the first sentence for first 10 elements. Please revise the first sentence. Hi, hello, listen BBC News on Friday night. First sentence is clear to everyone. Okay, now moving to next sentence. देखो sentence क्या है? Please listen carefully. ना मांगो अल्लाह से. Please listen. Second sentence. ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला अरे खाओ काजू. This is the second sentence. ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला अरे खाओ काजू. This is the second sentence for element up to 20. For element up to 20, that is calcium. ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला अरे खाओ काजू. This is the second sentence for element up to 20, calcium. I hope second sentence is clear to everyone. ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला अरे खाओ काजू. Okay, this is up to 20, calcium. Now third sentence, please listen carefully. Science teacher very cruel. Science teacher very cruel. मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता. This is the third sentence for element up to 30, zinc. Science teacher very cruel.
मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. That is up to 30. Please let me know, are these pages clear to everyone? These two pages, three sentences are clear to everyone? Okay. Okay, fine. We have done atomic mass number, that is A, which is equal to protons plus neutrons. Z, atomic number, which is equal to proton or also equal to number of electron in neutral atom. You can calculate number of neutron by applying formula A minus Z. Then we have learned the element up to 30. Three sentences were, hi, hello, listen, BBC News on Friday night. This is the first sentence. Second is, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला अरे खाओ काजू. This is the second sentence for 20 calcium. Next sentence, science teacher very cruel, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता. This is for scandium to zinc up to 30. I hope this much is very much clear to everyone. I hope this much is very much clear to everyone now. This is the first page, second page, third page. We have done till here. Now I am moving ahead. Next page. Look here. Very important concept for you. Maybe you are, this may be the new for everyone. You may have heard the term but not exactly aware. Please focus on this page. Very important page for you. Very important. Please listen here. Everyone focus on this page. Aditya, I will share the PDF with you. Don't worry. Please focus on this page. Now, okay, let me start this page. Here we are going to start with atomic mass unit, that is AMU. सबने इसके बारे में कभी न कभी सुना होगा. Atomic mass unit, that is AMU. देखो क्या होता है कि पहले मुझे बताना पड़ेगा कि AMU कहां से आया, राइट. मान लो मेरे पास एक वेट बैलेंस है जिससे मुझे वेट को मेजर करना है. इन दिस केस तुम देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में मैंने किसी आदमी को रखा हुआ है एंड राइट हैंड साइड में मैं उसको वेट करने के लिए, आदमी का वेट कितना है ये जानने के लिए मैं ब्लॉक्स रख रहा हूं, राइट. प्लीज फोकस ऑन दिस पेज. देयर इज अ वेट बैलेंस on left hand side of weight balance. I am taking a man, and to balance that man I am putting blocks. To measure the weight of man I am putting blocks on right hand side. Okay, now let it, ऐसा assume करते हैं कि मैन का वेट जो है वो इक्वल हो जाता है 50 ब्लॉक्स पे. ओके, तो मैन इक्वल टू 50 ब्लॉक्स. नाउ मान लो मैंने आदमी को हटाया और एक एलिफेंट को डाला. लुक हियर, मैंने उस मैन को हटा दिया, अभी एक एलिफेंट को डाला. उस केस में आई हैव टू पुट 700 ब्लॉक्स टू बैलेंस एलिफेंट. तो इस केस में मैन के केस में 50 ब्लॉक्स था, एलिफेंट के केस में 700 ब्लॉक्स है. मान लो मैंने एलिफेंट को हटा के किसी सिलेंडर को डाला, उस केस में इट वाज 20 ब्लॉक्स. आर यू गेटिंग एवरीवन व्हाट आई एम डूइंग? प्लीज रिप्लाई, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम डूइंग? तुम्हें समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट में? ओके ओके ओके.
ओके प्लीज फोकस नाउ। पहले मैंने आदमी को डाला, उसको बैलेंस करने के लिए आई नीड 50 ब्लॉक्स। एलिफेंट को डाला, उसको बैलेंस करने के लिए आई नीड 700 ब्लॉक्स। मैंने फिर सिलेंडर को रखा लेफ्ट हैंड साइड में, फॉर देट आई नीड 20 ब्लॉक्स। ठीक है, अब जरा यहाँ पे फोकस करना। इन दिस केस आई एम राइटिंग ब्लॉक्स अगेन एंड अगेन। मुझे हर बार क्या लिखना पड़ रहा है? ब्लॉक्स। आर यू गेटिंग? मुझे हर बार ब्लॉक्स लिखना पड़ रहा है, और तुम्हें पता है वी आर वेरी लेजी, राइट? In this case, I am writing blocks again and again. And you all know the human beings are very lazy. We are very lazy. We don't want to write blocks again and again. In this case, मैंने ब्लॉक को ही अपना यूनिट बना लिया। क्या बना लिया? यूनिट। मैंने मान लिया कि ब्लॉक इक्वल टू 1 kg। तो मेरे पास अब ब्लॉक की जगह पे मैं एक शॉर्टकट लिखूंगा kg। तो ब्लॉक को मैंने अपना यूनिट बना लिया, दैट इज kg। अब बताओ, मैन का मास हो जाएगा 50 kg, एलिफेंट का हो जाएगा 700 kg, सिलेंडर का हो जाएगा 20 kg। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि मैंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में? मैंने पहले ब्लॉक्स लिया, ब्लॉक्स बार बार लिखना पड़ रहा था, एंड वी आर वेरी लेजी, तो मैंने ब्लॉक्स को रिप्लेस कर दिया kg से। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके ओके, ठीक है। नाउ फोकस हियर। देखो, अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, वी आर गोइंग टू डू सेम एक्सपेरिमेंट विद द एटम्स। अब हम सेम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं एटम्स के साथ। प्लीज फोकस हियर। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने उस एटम को डाला जिसका मास मेजर करना है, और राइट हैंड साइड पे मैं कार्बन 12 एटम डाल रहा हूँ, कार्बन के एटम से डाल रहा हूँ। ठीक है, आर यू गेटिंग? क्या कर रहे हैं हम? लेफ्ट हैंड साइड में उस एटम को डाल रहे हैं जिसका मास मेजर करना है, right hand side में we are balancing that by carbon atom, putting carbon atoms. Okay, okay, now focus on next page. I hope this page is very much clear to everyone कि हमने क्या कर रहे हैं। I hope you are getting. Okay, moving to next page. देखो हमने क्या किया, जब मैंने राइट हैंड साइड में मान लो लेफ्ट हैंड साइड में मान लो नाइट्रोजन का एटम रखा, उस केस में मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? कितने कार्बन के एटम रखने पड़ रहे हैं? दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मुझे राइट साइड में इतना चीज रखना पड़ रहा है। उसके बाद अगर मैंने मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम मेजर किया, उस केस में मुझे 16 टाइम्स रखना पड़ रहा है, दैट इज 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। आर यू गेटिंग? अब देखो जरा, पहले हम ब्लॉक को बार बार लिख रहे थे, अभी हम 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम को बार बार लिखना पड़ रहा है। आर यू गेटिंग? नाउ इन दिस केस आई एम राइटिंग 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम अगेन एंड अगेन, एंड आई हैव already told we are very lazy, we don't want to write again and again the such big things. Now I am going to make 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom as one unit. उसको मैंने अपना यूनिट बना लिया, तो अब मैं क्या लिखूंगा सिंपल वे में? मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 AMU, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 AMU। मैंने 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को बार बार लिखने से अच्छा है उसको यूनिट बना लिया, दैट इज 1 AMU। तो 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। Now you can ask your doubts. Is there any doubt in these 2 pages? Are you getting what we are doing? Please let me know your doubts related to this 2 page. I hope you are getting what we are doing now. आरव, डोंट वरी, हम धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं उस टर्म के ऊपर। डोंट वरी, पहले जितना समझा रहा हूं उतना क्लियर करते चलो, दैट्स इट। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, आई विल हैंडल एवरीथिंग। जितना मैं बता रहा हूं उतना समझते चलो धीरे धीरे, दैट्स इट। क्या हुआ क्रिस? मैंने खाली 1/12 इंटू मास ऑफ 1 12 एटम को अपना यूनिट बना लिया, दैट इज AMU, वही किया है।
उसकी जगह पे मैंने एएमयू लिखा। देखो अगर तुम्हें दो पेज क्लियर नहीं है देन प्लीज लेट मी नो, वरना तुम्हें आगे का नहीं समझेगा। रिद्धि मिश्रा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मास ऑफ 1/12 1/12 कार्बन एटम को एएमयू मान लिया, जैसे वहां पे ब्लॉक को मैंने केजी मान लिया था, दैट्स इट। यहाँ पे देखो ब्लॉक की जगह पे केजी लिखा है, यहाँ पे 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम की जगह पे एएमयू लिख दिया है, एटॉमिक मास यूनिट, बिकॉज वी आर वेरी लेजी, वी डोंट वांट टू राइट सच थिंग्स अगेन एंड अगेन। आर यू गेटिंग? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में उस एटम को रखा जिसका वेट मेजर करना है, राइट हैंड साइड पे आई एम पुटिंग कार्बन 12 एटम टू बैलेंस दैट एटम। शुड आई मूव टू नेक्स्ट पेज? हाँ देखो सौमिल, मैंने 14 एंड 16 इसलिए लिखा, देखो यहाँ पे तुम मेन के, यहाँ देखो जरा सौमिल, तुम मेन के लिए 50 ब्लॉक्स लिख रहे थे बिकॉज तुमने 50 ब्लॉक्स रखे थे वहां पे, राइट सौमिल? यहाँ पे मैंने कितने कार्बन 12 के एटम रखे हैं? 14, इसके लिए मैंने वहां पे 14 लिखा है, क्योंकि 14 रखने के बाद दैट वाज गोइंग टू बैलेंस्ड। 1/12 इज द फ्रैक्शन, जैसे अगर 12 पार्ट है तो उसका 1 पार्ट लिया है। विधि जितना समझा रहा हूं प्लीज उतने पे फोकस करो, वी आर डूइंग ऑल दिस अगेन, मैं फिर से बताऊंगा कितना वेट है उसका, डोंट वरी, पहले जितना बताया उतना फोकस करके अच्छे से क्लियर करते हुए चलो आगे। आरो अभी मैंने मास ऑफ प्रोटॉन की बात नहीं की है, कुछ नहीं बोला है मैंने। फर्स्ट लेट मी नो कि तुम्हारा इतना क्लियर है क्या दिस 2 पेजेस? अब मैं डिवाइड इसलिए किया क्योंकि 12 पार्ट में से मैंने सिर्फ कार्बन के एटम के एक पार्ट को एंटर किया था राइट लेफ्ट हैंड साइड में। अलग ही होगा ना, देखो ना, अगर तुम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन रखोगे, ऑक्सीजन रखोगे, तो उस केस में तुम्हें अलग अलग कार्बन के डिफरेंट एटम्स डालने पड़ेंगे ना, अलग अलग अमाउंट डालना पड़ेगा टू बैलेंस, जैसे यहाँ पे हमने अलग अलग ब्लॉक्स के नंबर डाले थे टू बैलेंस। अमित वेट, पहले इतना बताओ, जितना पढ़ाया उतना क्लियर है? ओके नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज। तुम्हें इतना पता चल गया कि 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज, प्लीज फोकस। कुशल बेटा थोड़ा रुक जाओ, वी आर डूइंग। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पेज, लुक हियर। देखो जैसे ही बहुत सारे ईयर पास हो गए और जब हमने डिस्कवरी कर लिया अ डिवाइस नेम्ड एज मास स्पेक्ट्रोमीटर, हमने एक डिवाइस डिस्कवर किया जिसका नाम था मास स्पेक्ट्रोमीटर। उस डिवाइस के डिस्कवर होने के बाद सबसे पहले हमने कार्बन 12 एटम को मेजर कर लिया। आर यू गेटिंग? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डिवाइस कॉल्ड एज मास स्पेक्ट्रोमीटर, वी फर्स्ट मेजर्ड द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, और उससे मेजर करने के बाद हमें पता चला कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इज 1.99 इंटू 10⁻³ ग्राम। मास है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये हमको पता चला मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस की हेल्प से। सौर्य 12 is the atomic mass of carbon। क्लियर है? तो कार्बन 12 एटम का मास था 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम,
जो हमें मिला एक डिवाइस से जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी हेल्प से हमने कार्बन एटम को मेजर किया। ओके ओके तो हमने देखो यहाँ पे एक कार्बन एटम का मास निकाल लिया। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो मैं क्या करूंगा, उसकी वैल्यू रख दूंगा 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23। आफ्टर डिवाइडिंग बाय 12 आई विल गेट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। So I have converted AMU into gram. 1 AMU equal to 1.66 into 10⁻⁻24 gram. And please note 1.66 into 10⁻⁻24 can be also written as 1 divided by 6.023 into 10⁻23. 1 AMU equal to 1.66 into 10⁻⁻24 gram, or we can also write 1 AMU equal to 1/6.023 into 10⁻23 ग्राम। तो AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया सक्सेसफुली। आई होप कितना सबको क्लियर है। प्लीज लेट मी नो योर डाउट्स। अब बताओ क्या डाउट है तुम्हें। प्लीज टेल मी योर डाउट। तुम्हें AMU से ग्राम में कन्वर्जन समझ गया? यस कुशल, जब तुम 1 को डिवाइड करोगे 6.023 इंटू 10⁻23 से, देन यू विल गेट 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ओनली। बोथ द वैल्यूज आर सेम। यस सुधांशु, यू आर राइट। हाँ विदित, हमने कार्बन एटम को इसलिए यूज किया कि उस टाइम पे कार्बन का एक मतलब होल नंबर टाइप वाला मास अवेलेबल था, वेरस बाकी सबके फ्रैक्शन में थे। ओके आर यू गेटिंग? सबको क्लियर है? अब जरा एक बार देखो, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम तो इक्वल होगा 14 AMU के। अगर मैं बात करूं मास ऑफ, याद रखना मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, याद रखो इसको। अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, याद रखना 1 नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 AMU। अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम दैट इज इक्वल टू 16 AMU। ओके अब देखो, मूविंग टू नेक्स्ट पेज, प्लीज फोकस वेरी क्लियरफुली ओवर हियर। नेक्स्ट पेज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। जरा यहाँ पे अच्छे से फोकस करो, प्लीज फोकस ऑन दिस पेज नाउ। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो था एटॉमिक मास। पहले मुझे लेट मी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड ग्राम एटॉमिक मास। देखो, जो मास ऑफ 1 एटम होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। ओके तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 सिंगल एटम। लेट मी रिपीट, प्लीज नोट दिस वेरी केयरफुली। एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 सिंगल एटम। अगेन रुको, याद रखना कि एक एटम के वेट को हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। अब बता रहा हूं मैं कि ग्राम एटॉमिक वेट क्या होता है, उस पर फोकस करो। ग्राम एटॉमिक वेट इज द वेट ऑफ 1 मोल एटम। आर यू एबल टू डिफरेंशिएट? atomic weight is the weight of 1 atom. Gram atomic weight is the weight of 1 mole atom. अब तुम्हें डाउट आ रहा होगा कि 1 मोल एटम क्या होता है, राइट?
तो मुझे बता, देखो मैं बता रहा हूं कि जैसे अगर मैं बोलूं 1 मोल बनानाज विल बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 बनानाज। अगर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ मोबाइल फोन, 1 मोल मोबाइल फोन विल बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मोबाइल फोन। अगर मैं बोलूं 1 मोल रुपीज, 1 मोल रुपीज विल बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 रुपीज। सबको मोल समझ रहा है क्या होता है? प्लीज रिप्लाई, सबको मोल समझ रहा है क्या होता है? 1 मोल बनाना इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 बनानाज। तो ऐसे मैं रिलेट कर सकता हूं, 1 मोल एटम विल बी इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। आई होप सबको मोल समझ रहा है। मैं देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, atomic weight is the weight of single atom, but gram atomic weight is the weight of 1 mole atom. 1 mole atom equal to 6.023 into 10⁻23 atoms. हाँ वंश बताओ क्या डाउट है? या आदित्य यू आर राइट। वंश क्या डाउट है? प्लीज लेट मी नो। ओके वेट। यस वंश, कैन यू हियर मी? Yes, sir. बोलो क्या डाउट है? Sir, I have a doubt that mass of one atom would be different from mass of 1 mole atom, right? या राइट। So, sir, if we take one atomic weight like for carbon, so हाँ it is 12, and if इट we इज, take रुको मेरी बात सुनो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इज 12 mu, ओके? yes, sir, एक एटम का वेट उसको बोलेंगे एटॉमिक वेट। yes, अगर मैं ले लूंगा 1 मोल एटम ऑफ कार्बन दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, उस केस में उसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक वेट। so sir, it comes as 12 grams. या आई विल एक्सप्लेन दिस, मैं वही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, प्लीज Sir, वेट। how it is possible? अरे वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो तो सही, पहले आगे बढ़ने दो मुझे। Okay, sir. ओके लेट मी नो, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो चलो, आई एम मूविंग ऑन। प्लीज स्टॉप यूजिंग चैट बॉक्स नाउ एंड फोकस हियर। वी आर गोइंग टू डू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्लीज फोकस ऑन दिस पेज अगेन। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एटॉमिक वेट जो होता है वो एक एटम का वेट होता है, और ग्राम एटॉमिक वेट जो होता है वह 1 मोल एटम का वेट होता है। ओके, नाउ वी आर डिराइव, हम बताने वाले हैं कि ग्राम एटॉमिक वेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तुम बताओ जरा कि एक एटम नाइट्रोजन का वेट कितना था? 14 AMU, राइट? एक नाइट्रोजन एटम का वेट था 14 AMU। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का वेट कितना हो जाएगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई 14 बाय 6.023 इंटू 10⁻23। आर यू गेटिंग? एक नाइट्रोजन एटम का वेट 14 AMU था, तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का कितना हो जाएगा? यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 14 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 AMU। अब बताओ ये सबको क्लियर है कैसे आया? सबको क्लियर पता चल गया?
एक एटम का वेट 14 AMU था, तो एक मोल एटम का वेट 14 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 AMU हो जाएगा। मैंने जहां तक बताया है सिर्फ उसी की बात करो, प्लीज आगे की बात अभी मत करो। लेट मी एक्सप्लेन देम। जहां तक बोला उतना क्लियर है सबको, आगे मत देखो अभी। चलो देखो यहाँ पे, अभी मैंने बताया कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया 14 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 AMU। अब बताओ हमारा यूनिट क्या है, यहाँ पे AMU है। अब मैं जानना चाहता हूं कि ग्राम में कितना वेट होगा, तो जरा यहाँ देखो, हमने AMU और ग्राम का क्या रिलेशन लिखा है, 1 AMU इक्वल टू 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो इस केस में अब मैं नाइट्रोजन का वेट जो मैंने AMU में निकाला है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं। दैट्स व्हाई आई हैव टू डिवाइड बाय 6.023 इंटू 10⁻23। अब ये कन्वर्ट हो गया है ग्राम में। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब ऊपर और नीचे के टर्म कैंसिल कर दो, यू विल गेट 14 ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 14 ग्राम। अब बोलो क्या डाउट है किसी को? प्लीज लेट मी नो योर डाउट्स नाउ। यस आरो, बोलो क्या डाउट है? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। बच्चे 11th-12th में चले जाते हैं लेकिन ये चीजें उनको क्लियर नहीं होती, तो प्लीज बहुत अच्छे से समझो इन चीजों को। इट्स अ रिक्वेस्ट, तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। वेट, ग्राम एटॉमिक वेट, AMU, ग्राम कैसे कन्वर्ट करना है, क्या है, प्लीज फोकस वेरी केयरफुली ओवर हियर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे, अब मैं तुम्हें एक फाइनल कंक्लूजन बता रहा हूं, प्लीज लिसन दैट वेरी केयरफुली। फाइनल कंक्लूजन, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। अगर मैं बात करता हूं एक एटम की तो उसको हम लिखते हैं AMU। अगर मैं बात करता हूं 1 मोल एटम की तो उसको लिखते हैं ग्राम में। दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस यूनिट चेंज हो जाता है। एक एटम के केस में इट इज AMU, 1 मोल एटम के केस में इट इज ग्राम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, ठीक है। Now I am going to unmute some of you and I will ask some questions related to this. You have to give me answer, okay? मैं कुछ लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, प्लीज गिव मी आंसर। लेट मी चेक कि कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारा। कुशल, क्योंकि मैं AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा, प्लीज फोकस। मैंने AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया है। आर यू गेटिंग? कुशल, आर यू गेटिंग? यस आरुषि पांडे, आई एम अनम्यूटिंग यू। यस आरुषि, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, जरा बताओ, अगर मैं बात करूं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम कितना होगा? Uh, 16 AMU. Sorry, ग्राम 16 में कितना? gram. क्या यार,
16 ग्राम होगा कि 16 एमयू होगा, प्लीज कंफर्म। 16 AMU, sorry. श्योर ना? Yes. ओके, अगर एक एटम का वेट 16 एमयू है, राइट, यू आर सेइंग दैट। Yes. Yes. अब बताओ कितना ग्राम होगा इसमें, अगर मैं ग्राम में पूछूं तो? एक एटम का 16 वेट ग्राम में बताओ अभी। 1 atom का। हाँ, एक एटम, एक ऑक्सीजन एटम का वेट ग्राम में बताओ। अभी तुमने एमयू में बोला 16 एमयू, उसी को ग्राम में कैसे बताओगी? एक मिनट सर। 16 ग्राम। नहीं यार, Sorry, तुमने 16 by 6.023 into 10 raised to 23 gram. ओके, वेरी करेक्ट, राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बताना कि अगर मैं बात करूं मास ऑफ हीलियम एटम, यू नो ना एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम इज 4। Yes. हाँ बताओ, मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम का वेट कितना होगा? 4 gram. एमयू में कितना होगा? 4 by 6.023 नो, into 10 रॉन्ग, raised to... रॉन्ग। तुमने बोला 4 ग्राम, कन्वर्ट ग्राम इनटू एमयू नाउ। 4 into 6.023 into 10 raised to 23. या दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। आई होप कि क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट। Yes. ओके, वेरी गुड। या अभिक्षा बक्सी, आई एम अनम्यूटिंग यू। Yes. अभिक्षा, कैन यू हियर मी? Yes. हाँ, जरा बताना मुझे, तुम्हें सोडियम का एटॉमिक वेट पता है? Yes. 23 होता है। ओके, अब जरा बताना कि एक सोडियम एटम का वेट कितना होगा? Sir, 1 minute. अभिक्षा, व्हाट इज द वेट ऑफ सिंगल सोडियम एटम? 23 gram. रॉन्ग। तुम्हें मतलब अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अभिक्षा, Yes, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, राइट? ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। देखो, कुछ बच्चों को अभी भी क्लियर नहीं है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं सिंगल एटम की बात करूंगा तो उसका वेट होता है एमयू में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं सिंगल सोडियम एटम तो उसका वेट आएगा 23 एमयू। अगर मैं बात करूं 1 मोल सोडियम एटम तो उसका वेट आएगा 23 ग्राम। आर यू गेटिंग? सिंगल एटम का मास एमयू में, 1 मोल एटम का मास ग्राम में, दैट्स इट। अब तुम्हें जिसमें कन्वर्ट करना है, यू कैन कन्वर्ट 1 एमयू इक्वल टू 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। तुम किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो देन। Yes, Abhiksha, I'm unmuting you again. Abhiksha, can you hear me? अभी क्लियर है? हाँ, जरा बताओ, तुम्हें एक मिनट, तुम्हें फ्लोरीन का एटॉमिक वेट पता है? हेलो? Yes. ठीक है, देखो, mg का एटॉमिक वेट इज 24, राइट? अब जरा मुझे बताओ, मैग्नीशियम के एक एटम का वेट कितना होगा?
अभिक्षा कैन यू एक मिनट आप उस यस सर सर आप एक मिनट फिर से समझा सकते हो? ओके वेट, फिर से एक बार सुनो कि एक एटम का वेट हम एमयू में बताते हैं, 1 मोल एटम का वेट ग्राम में बताते हैं। वेरी सिंपल, इट इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। एक एटम का पूछा तो एमयू में बताओ, एक मोल एटम का पूछा तो ग्राम में बताओ, दैट्स इट। अभिक्षा अभी क्लियर है? यस चलो बताओ अभी। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन एटम की, तो सिंगल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा, प्लीज टेल मी। सर ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16 है। ओके 16 एम एक मोल ऑक्सीजन एटम का वेट कितना होगा? अभिक्षा कितना? 16 ग्राम। 16 ग्राम, ओके। एक मोल ऑक्सीजन एटम मतलब कितने एटम? 16 into 6.023 into 10 No, raised to wrong. 23 divided by आई एम आस्किंग एक मोल ऑक्सीजन एटम इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स? आई हैव टोल्ड यू लाइक, हाँ बोलो। 6 into 023 into 10 raised to 23. 6.023 into 10 raised to 23. Okay, that's correct. Okay, next question. Can you tell me what is the weight of single nitrogen atom? Weight is 14 होता है उसका, 14 बोलो। 14 AMU. ओके, अगर एक मोल नाइट्रोजन एटम की बात करो तो? 14 ग्राम। ओके, वेरी गुड। अभी क्लियर है सब? ओके, ओके। तो आई होप कि सबको एमयू, ग्राम, इनका कन्वर्जन, मोल सब कुछ क्लियर है। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। Okay. Should I move on next page? चलो ठीक है, ठीक है। Stop using chat box now and focus on next page now. Focus on next page. ये सब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में तुम्हें शायद पहले से पता होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज आइसोटोप्स। बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार। आइसोटोप्स देखो, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर अलग होता है, दे आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass number are called as isotopes. For example, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, there are 3 isotopes of hydrogen, that is protium, deuterium and tritium. You can see सबका atomic number is same, that is 1 1 1. सबका atomic number same. Are you getting? सबका atomic number you can see 1 1 1. सबका atomic number is 1, but mass number is different.
Look here for mass number, that is 1, 2, 3. Atomic number is same but different mass number. They are called as isotopes. सबको क्लियर है? अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? a माइनस जेड, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2. तो प्रोटियम कंसिस्ट ऑफ 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम कंसिस्ट ऑफ 1 न्यूट्रॉन एंड ट्रिटियम कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूट्रॉन. बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, दैट इज 1. तीनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, 1 1 1, but number of neutrons are different. I hope isotope is clear to everyone. Okay. Now एक हमारे पास दूसरा टर्म है, that is okay, stop using chat box now, listen here. हमारे पास दूसरा टर्म है आइसोबार्स. एग्जैक्टली उसका अपोजिट है. देख लो यहाँ पे, जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा उनको बोलेंगे आइसोबार. एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी हियर atomic mass number is same, that is 40 and 40. atomic mass number same है दोनों का, calcium and argon. But in this case you can see atomic number is different, that is 20 and 18. इनका atomic number अलग है, atomic mass number same है, इसके लिए ऐसे elements को बोलते हैं isobars. Yes, Shruti, you are right. They will have different atomic masses. Yes, once you are right. Okay, moving to next page. Please focus next page. Here I have written properties of isotopes. There are तीन point लिखा है मैंने. There are 3 points I have written. First point, isotopes have same number of protons, same number of electrons, but different number of neutrons. This is the first point. Second property, they have different physical properties like melting point, boiling point, they all different property होंगी. Third point, they have same chemical properties, उनकी chemical properties is same. Okay, ये 3 point तुम्हें याद रखना है regarding isotopes. They have same number of proton, electron, but different number of neutrons. They have different physical properties. They have same chemical properties. Okay. अब बताओ आइसोटोप के रिलेटेड कोई डाउट है किसी को? प्लीज लेट मी नो. एनी डाउट रिलेटेड टू आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स? ओके, देखो जरा, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज मींस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी, दोनों के दोनों सेम रिएक्शन शो करेंगे. कार्बन एंड नाइट्रोजन आर नॉन आइसोबार्स. आइसोबार नहीं है वो. कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, कैसे आइसोबार होंगे?
हाँ, कार्बन 14 के साथ हो सकता है, राइट। अगर कार्बन 14 लोगे आइसोटोप ऑफ कार्बन, देन इट इज राइट। ओके, नाउ प्लीज फोकस, स्टॉप यूजिंग चैट बॉक्स नाउ। अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, उस पर फोकस कर लो, 2 मिनट का काम है, प्लीज फोकस ऑन दिस टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट कैसे आता है, हाउ वी गेट फ्रैक्शनल एटॉमिक मास नंबर। जबकि मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो फ्रैक्शनल में कैसे आता है, अब हम ये देखने वाले हैं, प्लीज फोकस। देखो, फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट आता है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट आता है बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। एक्चुअली जो तुम फ्रैक्शनल एटॉमिक वेट लिखते हो वो होता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल दोज आइसोटोप्स विच आर अकरिंग इन नेचर। तो हम कैसे निकालते हैं, देखो जरा, एवरेज एटॉमिक मास, हम सारे परसेंटेज को उनके एटॉमिक मास के मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं एंड डिवाइड बाय 100, दैट्स हाउ यू विल गेट एवरेज एटॉमिक मास। मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जरा देख चेक करो एग्जांपल। क्लोरीन 35 जो होता है वो 75% अवेलेबल है, क्लोरीन 37 जो है वो 25% अवेलेबल होता है। सर्वेश थोड़ा सा रुक जाओ, पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने दो। क्लोरीन 35 75% होता है, क्लोरीन 37 25% होता है। अगर मुझे इसका एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है तो मुझे करना पड़ेगा 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 25, दैट इज 100। इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 35.5। दिस इज द एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है सौमिल, देखो जरा ध्यान से, प्लीज फोकस करो यार। देखो यहाँ पे क्लोरीन 35 75% है, क्लोरीन 37 25% है, तो एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे एवरेज, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 100, यू विल गेट 35.5। अगर मान लो यहाँ पे 3 आइसोटोप्स होते तो 35 इंटू तुम 75 करते, 37 इंटू मान लो 24 होता तो 24 करते, प्लस एक और आइसोटोप होता तो उसका वेट इंटू उसका परसेंटेज करके डिवाइडेड बाय 100 कर देते। कितने भी आइसोटोप होने दो उससे फर्क नहीं पड़ता। आर बिकॉज इट इज एवरेज एटॉमिक वेट, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग एज फ्रैक्शनल। हमने एवरेज निकाला है दोनों का। सौमिल, अगर टोटल 100% क्लोरीन अवेलेबल है तो उसमें 75% जो क्लोरीन होगा वो 35 वाला होगा और 25% जो क्लोरीन होगा वो 37 वाला होगा। हाँ आर्या, तुम हाइड्रोजन के लिए घर पे जाके ट्राई करो, उसके डिफरेंट आइसोटोप निकालो और कैलकुलेट करो एवरेज एटॉमिक वेट। कुशल, घर पे जाके तुम अलग अलग आइसोटोप के परसेंटेज निकालना और उसको बैठ के सॉल्व करके मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताना तुम्हें क्या मिल रहा है। ओके, दिस पेज इज क्लियर टू एवरीवन, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। देख लो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अभी बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने कर लिया है। प्लीज स्टॉप यूजिंग चैट बॉक्स नाउ एंड फोकस ऑन दिस पेज, फोकस ऑन दिस पेज नाउ। जैसे हमने एटॉमिक वेट की बात की, अभी हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट की। यस आरुषि, परसेंटेज विल बी गिवन टू यू इन क्वेश्चन ओनली। परसेंटेज तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। जरा देखो यहाँ पे, अभी हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर वेट की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर वेट,
शामिल मुझे पेज खत्म करने दो, फिर मैं पीछे वाला पेज दिखाता हूँ. प्लीज वेट, प्लीज फोकस ऑन दिस पेज एवरीवन. अभी सब कुछ भूल के पहले इस पेज पे फोकस करो. मॉलिक्यूलर वेट. देखो जैसे हमने एटॉमिक वेट किया वैसे मॉलिक्यूलर वेट भी करने वाले हैं. मॉलिक्यूलर वेट की बात होगी अगर, तो होगा सिंगल मॉलिक्यूल का वेट. जैसे एटॉमिक वेट वाज द वेट ऑफ सिंगल एटम, वैसे मॉलिक्यूलर वेट इज द वेट ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 मॉलिक्यूल इक्वल टू 16 into 2, दैट इज 32 AMU. सिंगल मॉलिक्यूल का वेट AMU में आएगा, दैट इज 32 AMU. Molecular weight of single N2 molecule equal to 28 AMU. Molecular weight of CO2 molecule equal to 12 plus 2 into 16 equal to 24 AMU. I hope this is clear to everyone. मैं बात कर रहा हूं सिंगल मॉलिक्यूल्स की, इसके लिए मैंने यूज किया है AMU. अब जरा देखो, अब मैं बात करूंगा ग्राम मॉलिक्यूलर वेट की. मतलब कितने मॉलिक्यूल का वेट होगा? 1 मोल मॉलिक्यूल्स. Molecular weight is the weight of single molecule. Gram molecular weight is the weight of 1 mole molecules. अब देखो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 32 ग्राम. ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 हो जाएगा 44 ग्राम. आई होप these things are very much clear to everyone now. हम मॉलिक्यूल और एटम में पहले लेक्चर में डिफरेंशिएट कर चुके हैं. आई होप यू हैव अटेंडेड द फर्स्ट क्लास. Yes, Tista, what are you asking? What are you asking? Please let me know. Yes, Aro, you are right. सर्वेस आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट. अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उनको बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक. सर्वेस आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स. यस अर्पित, यू कैन राइट. श्रुति, सब एलिमेंट के सारे आइसोटोप्स के परसेंट कंपोजिशन फिक्स है कि इन्वायरमेंट में कितना परसेंट अवेलेबल है, दैट इज फिक्स्ड. एटॉमिक मास के केसेस में जो वैल्यूज तुम्हें याद है यू कैन पुट दैट, और अदरवाइज इट विल गिवन टू यू इन क्वेश्चन. यस आदित्य, यू आर राइट. यस आयान, यू आर ऑल्सो राइट. वंस फिलहाल के लिए आइसोटोप आइसोबार याद रखो, बाकी जो कुछ भी रहेंगे बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. विदित आइसोइलेक्ट्रॉनिक आर नॉट इक्वल टू आइसोटोप्स.
Yes, Reshta, you are right. मैं तुम्हें कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के एग्जांपल बताता हूं, जैसे Na+ हो गया और Mg+2 हो गया. बोथ आर दी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. Na+, Mg2+, both are the isoelectronic species because Na+ also has 10 electron, Mg2+ also has 10 electron. So both are isoelectronic. Aryan, I have already told the Avogadro number, that is 6.023 into 10⁻23. बिकॉज आरव, हम अभी मोल कॉन्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी सबको कंफ्यूज करके मतलब नहीं है. आर यू गेटिंग? आर्यन, सब कुछ आज ही पढ़ना है क्या? Aryan, we will do valency also. Please wait. Let chapter proceed smoothly. Yeah, Pratyush, we will take. Yes, Hazel, I will send the PDF. Yes, Aryan, I know, but अगर मैं आज वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर पाया तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ना. मैं फटाफट सब एक दिन में खत्म कर दूं, दैट इज नॉट ऑल्सो करेक्ट, राइट? अभिक्षा, व्हाट यू आर राइटिंग? I am showing all the pages again. Please go through them and let me know your doubts. This is the first page where we have discussed about atomic mass number and atomic number and how to calculate number of neutrons. This is the second and third page where we have learned up element up to atomic number 30, concept of atomic mass unit, gram atomic mass, isotopes, isobars, isotopes and fractional atomic number, fractional atomic weight, molecular weight and gram molecular weight. Please let me know if you have any doubt related to today's lecture. Please let me know your doubts. सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना प्लीज.
Yeah, you can write. सौमिल, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मोल मॉलिक्यूल का ग्राम वेट, दैट्स इट. जैसे हमने ग्राम एटॉमिक वेट किया था वैसे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है. वो एटम्स के लिए था, ये मॉलिक्यूल्स के लिए है. एक मोल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट हो गया, दैट्स इट. Somil, are you getting? Gram molecular weight is the weight of one mole molecule. Now, please tell me gram molecular weight of H2SO4. Please tell me gram molecular weight of H2SO4. H equal to 1, S equal to 32, O equal to 16. मुझे जरा वेट बताओ कितना आएगा. Gram molecular weight of H2SO4. Please tell me gram molecular weight of H2SO4. Yes, Kunal and Arpit, you are right. Yes, right. 98 gram is the correct answer. 98 gram is the correct answer, right? Now tell me next question. Tell me how many electrons are there? How many electrons are there in O2 minus? How many electrons are there in O2 minus? Please tell me. How many electrons are there in O2 minus? देखो, atomic weight of atomic number of oxygen equal to 8 and it has 2 minus, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमने और डाल दिए तो it will become 10. So 10 is the correct answer. There are 10 electrons in O2 minus. Tell me number of electrons in Na plus. Na plus में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Tell me. Yes, 10 is the correct answer, right? Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 1 प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया. रिमेनिंग आर 10. 10 is the correct answer. Yes, Arav, you are right. Now tell me number of neutrons in nitrogen 714. Tell me number of neutrons in nitrogen 714. Yes, right. 7 is the correct answer. You have to do A minus Z. That is 14 minus 7 equal to 7. 7 is the correct answer.
Yeah, sorry, right. 7 is the correct answer. Now, please. Shreya Tripathi, what are you saying? I'm not getting. Shreya, what are you saying? I'm not getting. Okay. Now, the homework questions for you, which you have to solve. The homework question for you, which you have to solve. You can see on this page. You have to open the e-books. You have to open the e-books. Go to exercise questions. Homework, please note down this homework question. I will share the PDF also with you. From level 1, we have to solve question number 1 and 7. From level 2, you have to solve 2, 3, 12, 14, 15, 17, and 21st. From subjective, you have to solve 1, 2, 3, 4, 5. Please open ebooks in incognito mode. ebooks को incognito mode में खोलना, ओपन हो जाएगा. ये सारे क्वेश्चन करके आने हैं. लेवल 1 का 17, लेवल 2 के मैंने लिखे हुए हैं सब्जेक्टिव 1, 2, 3, 4, 5. ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए. Dhruv, then call Dhruv, you can talk to a center coordinator then. Amay, you cannot download, you can access online only. अगर आज के लेक्चर में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क. प्लीज लेट मी नो डाउट्स रिलेटेड टू. Please let me know your doubts. No, sorry, you cannot download. You can only access online. Yeah, Sudhanshu, we've done for today. If any doubt, you can ask. Arav, you have to solve the questions from ebooks only. Panacea portal. You have to go to Panacea portal. Okay, thank you so much, everyone. I hope you enjoyed the lecture. Ayush, you can get the ebooks on Panacea. Please talk to your center coordinator for that. Arav, no.
ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ना, सबको बहुत अच्छे से क्लियर करना। ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली एटॉमिक वेट वाला कॉन्सेप्ट, दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। Okay, and please solve the homework questions that will help you to revise the concepts. Okay, I'm ending the meeting. Thank you so much.